Uh, Good evening, everybody. Just confirm me if at all I am audible and visible by typing Y in the chat box. Cool, guys. Thanks for the confirmation.
I'm sure you all must be excited about this session, and I am also more than excited for this session. Uh, the coming 1 hour, it's gonna be full of learnings and also full of eye-opening. Okay, so ensure you are wherever you are and एक अच्छी जगह पे बैठो. आपकी बगल पे डिस्टरबेंस नहीं होना है. एक बंद कमरे में जाओ, जा सकते हो तो, because I am gonna teach you many hacks and cracks, and this will help you a lot in your preparation and also while giving mocks and also while giving your actual cat. Okay, Priya, I think you have to re-log in. If at all I'm not audible, I think I'm audible for everybody. Everybody, if at all I'm audible to you all, please type A in the chat box. Type A, audible. Yes, thanks for the confirmation, guys. Now, all those people whomsoever logged in with phone names or usernames, please rename yourself with your actual name. Okay. So ensure you have your actual name instead of your the phone name or username. Okay. So before I proceed further, because there are many students I think who don't know me here, I would like to know how many people of here don't know me. If you don't know me, type me in the chat box. If you don't know who I am, apart from whatever you're saying, if this is your first session, please type me in the chat box. Okay, there are many people. Good. Okay, Harsmin. Okay, Shalu. Okay, Nancy. Okay, Asta. So for all those people who is attending my session for the first time, yes, don't say that. Yes, Sadhwani, I have seen you many times in my classes. Okay. So for people whoever is attending my session for the first time, I would want to introduce myself. ठीक है, थोड़ा मेरे बारे में जान लो, उसके बाद क्वांट के बारे में जानते हैं. ठीक है, मेरा नाम भार्गव सर है. ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में. मैं आंध्र प्रदेश से हूँ. ठीक है, बाय क्वालिफिकेशन बाय क्वालिफिकेशन मैं इंजीनियर हूँ. ठीक है, आई डोंट नो हाउ मेनी इंजीनियर्स आर हियर. I did my electronics and communication engineering in Amrita College, Bangalore. After that, just like every other engineer, I also started my journey, professional journey as a software engineer. ठीक है, मैं आईटी में काम कर रहा था एज ए प्रोग्रामर एनालिस्ट. आई यूज टू डिजाइन यूजर इंटरफेस फॉर द एप्स. मंडे टू फ्राइडे ऑफिस होता था, सैटरडे संडे हॉलीडे होता था. मुझे तो मंडे टू फ्राइडे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन सैटरडे संडे अच्छा लगता था क्योंकि वो वीकेंड है, ऑफिस को जाने का जरूरत नहीं था. सो एक दिन मैंने सोचा, यार ऐसे तो नहीं चलेगा, मंडे टू फ्राइडे भी ऐसे एक काम करना पड़ेगा जिसमें मुझे मजा है. मंडे सुबह उठ के बोलना है, वाह आज मंडे है, काम के लिए जाएंगे. सो ऐसा एक काम करने के लिए सोच रहा था मैं. एंड इस सोच के थ्रू मुझे एक थॉट मिल गया कि मैं पढ़ाना क्यों नहीं चालू कर सकता हूँ. ऐसे सोच के सैटरडे संडे पढ़ाना चालू किया. या मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है तो, क्योंकि मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, मैं अभी अभी हिंदी सीख रहा हूँ. बट इन केस हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो गया तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना. तो सैटरडे संडे में पढ़ाना चालू किया. पढ़ाना चालू करने से मुझे बहुत मजा आया. आई स्टार्टेड एंजॉइंग द टीचिंग. सो कुछ दिनों के बाद मैंने डिसाइड किया, भाई मैं हर दिन यही काम करूंगा. ऐसे सोच के आईटी में काम छोड़ दिया मैंने. सो आईटी में काम छोड़ दिया और मंडे टू संडे every day is my working day now. There is no holiday. I enjoy my work, and if I take holiday, that is something uh, which bores me. काम करने में बहुत मजा आता है. And that काम is teaching students and impacting students and inspiring students. ठीक है, मेंटरिंग करना सबको एंड सब स्टूडेंट्स को उनकी ड्रीम कॉलेज पे पहुंचाना. एंड हर कॉन्सेप्ट को मैं कैसे सबसे बेहतर तरीके में कैसे पढ़ा सकता हूँ. सो इसके ऊपर मेरा रिसर्च चली रहा है वो चलता रहेगा. ठीक है. नाउ नाउ व्हाट आई वांट टू से इज, ये तो है मेरा प्रोफेशनल जर्नी, पर लेकिन मेरे बारे में कुछ चीजें आपको जो पता होना है. देर आर सम यूनिक थिंग्स अबाउट मी, आप सबको पता होना है. बिकॉज आपके लिए एक सॉलिड रीजन बन जाएगा आप मेरे पास क्यों पढ़ना है. ठीक है. बचपन से मेरा मैथ्स थोड़ा अच्छा था. ठीक है. सो
10th क्लास में बोर्ड एग्जाम में मेरा मैथ्स में 100/100 था। एंड उसके बाद आंध्र प्रदेश में तो 11th स्टैंडर्ड भी बोर्ड से, 12th स्टैंडर्ड भी बोर्ड से। काफी स्टेट्स में सिर्फ 12th स्टैंडर्ड ही बोर्ड से। आंध्रा में तो दोनों स्टैंडर्ड बोर्ड्स थे, एंड दोनों बोर्ड्स में मेरा मैथ्स में 100/100 था, 11th स्टैंडर्ड में भी 12th स्टैंडर्ड में भी। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग गया। इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में मैथ सब्जेक्ट था, मैथ सब्जेक्ट में मेरा अगेन 100/100 था, राइट। सो जब भी मैथ्स एग्जाम था मुझे हमेशा 100/100 ही आता था, क्योंकि मैथ्स मुझे बहुत पसंद था। जब भी मैं पढ़ता था मैं ऐसे पढ़ता था कि इस कॉन्सेप्ट को मैं कैसे जिंदगी भर याद कर सकूं, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला को रट्टा नहीं मारता था, मैं हर फॉर्मूला को समझता था ये क्यों ऐसा काम करता है, ठीक है। सो वैसे 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 मैं पिछले 4 सालों से हर साल कैट एग्जाम दे रहा हूँ, जिस एग्जाम के लिए आप सब लोग टारगेट कर रहे हो, ठीक है। एंड हर साल मेरा क्वांट सेक्शन में 99.9 परसेंटाइल आ रहा है। एंड कैट 2023 का बात करूं जो अभी हुआ लास्ट 6 मंथ्स पहले, उसमें मेरा क्वांट का परसेंटाइल है 99.93, विच यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। एंड दैट वाज गुजरात हाईएस्ट इन क्वांट सेक्शन। एंड इन ए नटशेल दिस इज माई इंट्रोडक्शन। मैं ये सब आप सबको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना अच्छा हूँ इसमें, नहीं। ठीक है मैं हूँ थोड़ा अच्छा, पर लेकिन मैं आप सबको इसलिए बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज को आप पसंद करके करते हो ना, उसमें आप एक्सेल करोगे। कोई भी चीज आप पकड़ोगे जिंदगी में, उसको पसंद करके करना, उसमें आप एक्सेल करोगे। मैं कभी भी रिजल्ट के ऊपर इतना सोचा नहीं, बट लेकिन मैं हर बार ये सोचता हूँ इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर कैसे करें, इस क्वेश्चन को और बेहतर कैसे सॉल्व करें, ठीक है। मैं हर एक क्वांट क्वेश्चन का आपको कम से कम 3 से लेके 4 वेज ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन दूंगा। हर एक क्वांट क्वेश्चन का मैं आपको 4 से लेके 3 कम से कम। कुछ क्वेश्चंस वैसा भी है मैं जहां आपको 6 सॉल्यूशंस भी दे सकता हूँ सिंगल क्वेश्चन के लिए। लेकिन आप सब लोग कैट एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर कर रहे हो, आप सबको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि आपको हर क्वेश्चन का हर काइंड ऑफ सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है। हर क्वेश्चन के लिए एक सबसे बेहतर अप्रोच एक होगा, सबसे फास्टेस्ट अप्रोच ये एक होगा, वो आपको पता होना है। वो सबसे फास्टेस्ट मेथड जो भी है वो आपके पास तक, आपके नजदीक तक पहुंचाना मेरा जिम्मेदारी है, ठीक है। दैट्स व्हाट आई हैव टेकन द वोथ एज वॉट एवर द बेस्ट टेक्निक दैट वन has to get to solve a question, I'll have to provide with you with that, ठीक है। आज का सेशन का मैं थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ, ठीक है। काफी बार मैं सुनता हूँ कि कैट का क्वांट बहुत टफ है, और लोग ये भी बोलते हैं कि इंजीनियर्स के लिए ही ये पेपर बना जाता है और बाकी सब लोग नहीं कर सकते। मैं बोलता हूँ इंजीनियर्स के लिए एक्चुअली ये थोड़ा टफ होता है, क्योंकि एक इंजीनियर ऐसा सोचता है कॉन्सेप्चुअली क्रैक करने का, बट लेकिन आपको ना थोड़ा भी कॉमन सेंस है, इन क्वेश्चंस को आप थ्रू कॉमन सेंस कर सकते हो, ठीक है। एक बार सोचो, ये लोग एग्जाम ऐसा दे रहा है कि 10th स्टैंडर्ड तक का ही सिलेबस ले रहे हैं, ठीक है। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू नो कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ऑल फॉर्मूलास एंड ऑल, नहीं। आपको कॉमन सेंस यूज करके इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स इन माय क्लास टेक मोर टाइम बिकॉज दे गो विद द कॉन्सेप्ट, दे वांट टू डू स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट के जैसा। बट लेकिन एक कॉमर्स वाला बंदा है, एक बीबीए वाला बंदा है, या तो एक आर्ट्स वाला, ह्यूमैनिटीज वाला बंदा है, वो क्या करेगा सर, उनको वो सोचेगा कि मैं इस ऑप्शंस के थ्रू कैसे करूं, मैं इसको एलिमिनेट कैसे करूं, या इस क्वेश्चन को एक रैंडम एग्जांपल से कैसे करूं, ठीक है। व्हेन देयर इज ए हार्ड वे, यू हैव टू कम अप ऑलवेज विद ए इजीएस्ट वे, ठीक है। मैं ये बोलता हूँ कोई भी क्वेश्चन आप कैट का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन 4 मिनट से ज्यादा जा रहा है, उसका मतलब है आपकी मेथड लॉन्ग है, ना तो आपकी अप्रोच लॉन्ग है। बिकॉज कोई भी कैट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली गया तो भी, या शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में गया तो भी, ट्रिक के साथ आपको 4 से 5 मिनट के ऊपर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। एंड देर आर सम क्वेश्चंस इन द रियल कैट एग्जाम, मैं बोल रहा हूँ रियल एक्चुअल कैट एग्जाम, उसमें आप 30 सेकंड में भी आंसर कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। कैट का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है, टफ क्वेश्चन को भी 3 ही मार्क है, इजी क्वेश्चन को भी 3 ही मार्क है। मैं क्यों पंगा लूंगा टफ क्वेश्चन से, इजी क्वेश्चन को पकड़ूंगा, उसमें
3 मार्क्स मैं लेके जाऊंगा। सी दैट शुड बी योर थॉट प्रोसेस वेन एवर यू आर डूइंग नॉट जस्ट कैट एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है। सो मैं 2-3 स्लाइड्स दिखा दूंगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है। If you are ready for the session, everybody, if you are ready to learn the things that I'm going to teach today, just type Y in the chat box, everybody. Fast. Cool. I want to see that energy. Wonderful. Cool, guys. ठीक है। परफेक्ट। सो मैं कोई भी एग्जाम का बात करूं, मैथ्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर मेरे पास एक वीडियो है। आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू हेट मैथ्स? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। इफ यू हेट मैथ्स, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ओके 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 ओके। आप सबके लिए मेरे पास एक वीडियो है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, एक बार ये वीडियो देखो। पसंद मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। ठीक है। सो एक वीडियो में मैंने दिखा दिया मैथ्स होता क्या है। ठीक है। ठीक है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां आपको मैथ्स का जरूरत नहीं है। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है आपका मैथ्स सही नहीं है। ठीक है। इंश्योर, यू हैव टू इंश्योर आपकी मैथ्स थोड़ा सा ठीक है। ठीक है। कैट क्राइंग इन द कॉर्नर। कैट भी आके पूछ रहे हैं मुझे मैथ्स चाहिए। ठीक है। एंड मैं कई बार देखता हूँ, जब भी कई बार कुछ थोड़ा भी टफ कॉन्सेप्ट मैं क्लास में समझाता हूँ, मुझे अ, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिखता है। मैं मेरे पास कुछ एक्सप्रेशन का वीडियोस में रखा हूँ, एक बार देख लो कितनी बार आपने ऐसा एक्सप्रेशन दिया आपकी मैथ क्लास में। थोड़ा देख लो। ऐसा ऐसा हुआ है समटाइम्स ओनली। ऐसा कभी हुआ है? ये देखो। कितनी बार आप फ्रस्ट्रेट हो गए मैथ्स को देख के, राइट? ठीक है। स्पेशली फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स, हाँ, जिनको भी ऐसा लगता है कि मैं मैथ देखने से पूरा कंफ्यूज हो जाता हूँ, मुझे मैथ देखने से बहुत बार फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ठीक है। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई एम ensuring दैट फॉर ऑल दोज पीपल हु एवर हैव मैथ्स का फोबिया, मैथ से डर, मैथ से हेट्रेड, ये वाला सेशन आपकी डर हटाएगा। थोड़ा ढंग से मेरे साथ रहना, कमिंग 1 आवर। ठीक है। सो आज की सेशन में मेरा वे ऑफ टेकिंग द क्लास ऐसा होता है, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद टाइमर लगाऊंगा, 2 मिनट का टाइमर लगाऊंगा। ठीक है। आपको जैसे मन में आता है वैसे करो क्वेश्चन। ठीक है। जरूरत नहीं है आपको कॉन्सेप्ट ही यूज करना पड़ेगा, आप सोचो क्या क्या कर सकते हो उस क्वेश्चन के साथ, 2 मिनट उस क्वेश्चन के साथ आप लड़ो। ठीक है। 2 मिनट आप सोचो कि क्या 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 मैं कर सकता हूँ इसमें। ठीक है। उसके बाद 2 मिनट के बाद मैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा। मैं कैसे करता हूँ इस क्वेश्चन को एक्चुअल एग्जाम में, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द लैटरल अप्रोचेस टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है। क्या है, मैं क्वेश्चन दूंगा, 2 मिनट दूंगा, उस 2 मिनट में क्वेश्चन को आप कैसे भी सॉल्व करते हो ट्राई करो। उसके बाद मैं मेरा अप्रोच दूंगा, एंड आपका सबसे बड़ा लर्निंग होगा वो वाला अप्रोच जो मैं देने वाला हूँ 2 मिनट के बाद। पर लेकिन उस 2 मिनट आप शिद्दत से उस क्वेश्चन को ट्राई करोगे, बीच में कभी गिव अप नहीं करोगे, भले क्वेश्चन कितना भी टफ निकले, भले क्वेश्चन कितना भी इजी निकले, आप तो ट्राई करोगे ही करोगे। जिनका क्वेश्चन का आंसर मिल गया है वो आंसर टाइप करते रहो मुझे। ठीक है। जो भी आपको बोलना है आप मैसेज में टाइप करते रहो, मैं पढ़ता रहूंगा। ठीक है। लेट्स गो फॉर द
first question of the day and see what and how you will solve. No, Perisha? No, Persia? Yeah. Here is the question for you. Your time starts now. Try this. एक सेकेंड गाइस, क्वेश्चन सही से विजिबल नहीं है, सो आई एम मेकिंग इट विजिबल अगेन. Just confirm me if it is visible right now. Just confirm me if it is visible right now. Still not visible. एक second. Yeah. Just confirm me now. If yes, type yes in the chat box. Why yes? Why is it not visible clearly? Yes, now it should be clearly visible. Guys, if it is clearly visible, yes, cool. Now start trying the question. Your time starts now. Your 2 minutes. No Parth, no Manya, cool Harshita, no Sehaj, cool Kumud, no Sahil, cool Darsh, cool Anushka, no Sujal, no Vivek. No, 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 no. Okay, just wait for 40 seconds more. Okay, guys, your time is up. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस बाय द वे. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस एंड आई विल टेल यू हाउ यू कुड हैव अप्रोच्ड दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो यह क्या बोल रहा है. ठीक है, इनिशियली आपको क्वेश्चन देखे कुछ समझ में नहीं आया तो भी ठीक है, चलेगा, मैं आपको समझाऊंगा इस क्वेश्चन को. देखो, यहाँ दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 1073 बोल रहा है, वापस इन डिजिट्स को पलट रहा है वो, सीडी सीडी को वैसे ही रख रहा है. राइट, सो पलट के मल्टीप्लाई किया तो 2117 हो रहा है. उसके बाद क्या बोल रहा है, आई नीड टू फाइंड आउट ए बी प्लस सी डी. ए बी प्लस सी डी इन दोनों की सम मुझे चाहिए. गिवन दैट ए बी बी ए एंड सी डी ऑल आर टू डिजिट पॉजिटिव नंबर. सारे क्या है, टू डिजिट पॉजिटिव नंबर है. ठीक है,
सारे 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स है। मतलब अभी हमको क्या करना पड़ता है, 1073 को फैक्टराइज करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ये भी क्या होगा, सीडी क्या होगा। उसके बाद उसको बीए करके सीडी वो आएगा या नहीं आएगा वेरीफाई करना पड़ेगा, राइट। अभी 1073 का फैक्टर्स ढूंढना पड़ेगा। मैं कैसे फैक्टर्स ढूंढूं इन सब का, इसको कैसे लिखूं? 6 हो तो मैं लिख सकता हूँ 2 into 3, बट लेकिन 1073 को कैसे लिखूं? ओ ए बी इंटू सी डी। सो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम। लेकिन आपको देखना है, ये सब पता होने का आपको जरूरत ही नहीं है, फैक्टराइजेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करके लाना है, वो सब आपको सिर्फ इतना पता होना है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। क्या पता होना है? इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। मुझे पता है कि काफी लोगों को पता है इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, जो भी 2 से डिविजिबल है वो सब इवन नंबर है। बाकी नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब ऑड नंबर्स है। हम सबको पता है ये क्या है, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है। मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा, ठीक है। देखो, व्हेन आई डू इवन इंटू ऑड, क्या आएगा? 2 into 3, 2 into 1, 2 into 5, जो भी करो, 2 into 3 ले लो, 6 आएगा। मुझे क्या आएगा? इवन ही आएगा, राइट। सपोज ऐसे इवन मल्टीप्लाइड बाई इवन, 2 × 4 किया मैंने, 8 आया, तब भी मुझे इवन ही आया। वेराज इफ आई मल्टीप्लाई ऑड मल्टीप्लाइड बाई ऑड, 3 into 5 ले लो मुझे, 3 into 5 विल बी 15, विच विल बी 3 into 5 विल बी 15, विच विल अगेन बी ऑड। मतलब मुझे यहाँ एक चीज तो अच्छे से दिख रहा है, इवन इंटू ऑड इवन ही हो रहा है, इवन इंटू इवन इवन ही हो रहा है। दोनों जब ऑड होगा उसका मल्टीप्लाई करने से तभी मुझे ऑड मिलेगा। दोनों जब ऑड होगा तभी मल्टीप्लाई करने से मुझे ऑड मिलेगा। लेकिन इन दोनों आई मीन कभी भी इन दोनों में एक भी इवन है, प्रोडक्ट किया तो इवन ही आएगा। मतलब ये एक चीज है। एंड अब देखो, इवन नंबर प्लस इवन नंबर क्या होता है? 2 + 2 4, 2 + 4 6, सो इवन आता है। इवन प्लस आड क्या होता है? 2 + 3 करो 5, तो आड आता है। पर लेकिन आड प्लस आड करो क्या आता है? आड प्लस आड करने से 3 + 3 6 है। एक एग्जांपल लिया मैंने, इवन आ गया। मतलब दोनों इवन का एडिशन, दोनों आड का एडिशन हमेशा इवन ही आएगा, ठीक है। ये बेसिक चीज आपको पता होना है इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मतलब व्हेन आई डू प्रोडक्ट, दोनों आड हो तो उसका प्रोडक्ट आड बन जाएगा। व्हेन आई ऐड, दोनों आड हो तो या दोनों इवन हो तो तभी मुझे इवन बन जाएगा, बाकी केसेस में आड बन जाएगा। अब इतना नॉलेज लेके, ये तो एलिमेंट्री मैथ्स है, 8th स्टैंडर्ड की मैथ्स है, इसमें कोई फॉर्मूला गिमला नहीं है। अब देखो, दो नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे एक आड नंबर आया। आड नंबर कब आता है? प्रोडक्ट में। दोनों की दोनों आड होना है, दोनों में एक भी इवन है वो इवन बन जाएगा। मतलब क्या है? आई कैन क्लियरली से दैट ए बी इज ऑड, सी डी इज ऑल्सो ऑड, तभी मुझे आड आएगा। एक भी इवन हो तो वो इवन बन जाएगा। अब क्या है, ऑड प्लस ऑड करने से मुझे इवन नंबर बन जाता है। कोई भी ऑड प्लस ऑड ऐड करने से ऑड नंबर को मुझे इवन बन जाता है। नाउ लुक एट द ऑप्शन, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है। मेरी आंसर जो है वो इवन है, ये की ऑप्शन है, आंसर इज 66, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे करने से कितना टाइम लगेगा, कितना आसान होगा? एवरीबॉडी, इफ यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड, टाइप वाई इन द चैट बॉक्स राइट नाउ, ठीक है। ये जो आड इवन का कॉन्सेप्ट है आपको काफी बार हेल्प होगा, ठीक है। मैं आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट इसका कैसे निकालते हैं वो सब नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि उसका बहुत ही प्रोसेस होता है। बट लेकिन आप इतना समझो, मेरा दो नंबर का प्रोडक्ट आड कब होता है? व्हेन दोनों नंबर आड होता है, दोनों नंबर आड होता है तभी मेरा नंबर आड होता है। तो मेरा नंबर आड हो गया, मतलब दोनों नंबर आड है, दोनों नंबर का
हार्ड हो तो उनका एडिशन इवन ही होना चाहिए, एंड देर इज ओनली वन इवन नंबर। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू अप्रोच द क्वेश्चन। सो दिस इज वन वे ऑफ अप्रोचिंग द क्वेश्चन लैटरली। ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर विल बी एबल टू सॉल्व। ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट दिस क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन। ऋषभ, ऐसा हो तो यू विल हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन गाइस, योर टाइम इज। If you have a pen and paper with you, and then solve the question. Okay, last 40 seconds. Okay, many of you are telling wrong answer. चलो। हम्म, ठीक है। एवरीबडी, आई नीड योर अटेंशन। सी यो, ये जो क्वेश्चन है आपके पास, आई एम आस्किंग यू टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस नंबर, राइट? ठीक है, द मोमेंट students look at this word maximum value, and then they look at the modulus, and then they look at the inequality less than x, हम छोड़ते हैं ना एग्जाम में क्वेश्चन को। हम्म, ऐसे देख के मैं बोलता हूँ यही क्वेश्चन एग्जाम में आया तो 60% ऑफ द लोग छोड़ते हैं। ठीक है, आप लोगों ने एंड मैक्सिमम वैल्यू के लिए एक फॉर्मूला भी है। मैं बोलता हूँ वो फॉर्मूला गिमला कुछ भी याद नहीं हो तो भी चलेगा ऐसे वाले क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, मैं जो भी ले रहा हूँ ये सारे कैट क्वेश्चन है वैसे। एक कोई नॉर्मल क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाया, एक्चुअल कैट क्वेश्चंस है ये सब। आप लोग को देखना है सब कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन है, ये क्या दिया हुआ है? एक एक्सप्रेशन दिया है 30 प्लस 9x - 3x² एंड मॉड्यूलस में है वो वैल्यू। ठीक है, एंड -1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 4। मतलब x का वैल्यू -1 से 4 के बीच में है, तब इनका वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा वो पूछ रहा है। मतलब मुझे वैल्यू बड़ा होना चाहिए, एंड x का वैल्यू -1 से लेके 4 तक होता है, राइट? -1 से 4 मतलब -1 0 1 2 3 4, यही है ये वैल्यूज इंटीजर्स में। तो नाउ इसका अप्रोच कैसे होना है? आइडियली ये फॉर्मूला आपको याद हो तो आप कर सकते हो। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इज गिवन बाय c - b² दैट अकर्स एट x इक्वल टू -b/2a में रखने से आ जाता है। उसके बाद आप रखने से ए बी सी ये सारे करके उसके बाद फॉर्मूला में रख के आंसर ला सकते थे। बट मैं ये पढ़ाने के लिए आज नहीं हूँ। आई एम नॉट टीचिंग यू द वे फॉर्मूला वे।
बट व्हाट हियर आई एम हियर टू टीच इज, पहले आपको देखना है ये वैल्यूज क्या है, दिया वैल्यूज क्या है। अच्छे से देखो, मैं x इक्वल टू 0 रख लिया तो, बिकॉज -1 की 4 के बीच में x 0 है ना, x 0 रख लिया तो ये 9 इंटू 0 0 होगा, ये 3 इंटू 0 0 होगा, वैल्यू 30 बनेगा, क्योंकि ये दोनों 0 बन जाएंगे, वैल्यू मॉड्यूलस ऑफ 30 विच इज 30 बन जाएंगे। मतलब मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है मुझे, एक पॉसिबल वैल्यू 30 ऑलरेडी है, एक पॉसिबल वैल्यू है, मतलब डेफिनेटली 18 विल बी द रॉन्ग आंसर, बिकॉज वो 30 से कम है, मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो एक पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू 30 तो है, मतलब 18 तो मैं रखूंगा ही नहीं, एक ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट, यू एलिमिनेट हो गए। अब एक तो x इक्वल टू 0 तो रखा मैंने, अब मैं -1 की 4 के बीच में और एक वैल्यू रख के देख लूंगा क्या होगा, x इक्वल टू 1 रख के देखता हूँ क्या होगा इसमें, क्या होगा, 30 प्लस 9 -3, 39 -3 36, मतलब 36 भी पॉसिबल है इसको, जब x का वैल्यू -1 की 4 के बीच में है, x1 हो तो 36 भी पॉसिबल है। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है, 93/4 24.25 है, आपके पास कैलकुलेटर होता है फटाक देख सकते हो, 147.4 36.75 है, राइट, मतलब 36 वैल्यू पॉसिबल है, मतलब 30 तो डेफिनेटली रॉन्ग आंसर है, क्योंकि उससे बड़ा वाला तो मिल रहा है, ऑलरेडी 30 मिल रहा है, तो 24.25 तो नहीं हो सकता, 18 को हमने ऑलरेडी एलिमिनेट किया, so your answer should be 36.75, that comes simply by putting x equal to 0, x equal to 1, बिकॉज x इक्वल टू 0 रखने से 30 आया तो ऑप्शन 4 एलिमिनेट हो गया, x इक्वल टू 1 रखने से 36 आया तो ऑप्शन 3 एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन 1 भी एलिमिनेट हो गया, सो आपके आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2, विच एक्चुअली फॉर्मूला से कर सकते हैं, बट लेकिन आपकी कॉमन सेंस यूज किया तो भी आप कर सकते। सो जब भी एग्जाम में आपको अलजेब्रा की क्वेश्चन जैसे इनइक्वालिटीज आया, आप सिंपली वैल्यूज रख के देखना पड़ेगा, या परशिया दैट्स व्हाट आंसर इज एक्चुअली इन डेसिमल्स, बट ये ऑप्शन है तो यू कैन बी स्मार्ट, उस ऑप्शंस को यूज करके आप आंसर कर सकते हो। हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो ना, सिर्फ क्वेश्चन इज नॉट द क्वेश्चन फॉर यू, इवन ऑप्शंस आल्सो आर द क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। राहुल मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स इक्वल टू 0 रखा, एक्स इक्वल टू 0 रखा, एक्स इक्वल टू 0 रखने से मुझे 30 आया है, वो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, मतलब 18 तो डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी 30 आ रहा है, मैं x इक्वल टू 1 रखा तब 36 आया मुझे आंसर, 36 भी पॉसिबल है इसका, मतलब डेफिनेटली मैक्सिमम वैल्यू 24.25 या 30 तो नहीं होगा, क्योंकि 36 पॉसिबल ही है, तो ओनली आंसर जो बचा है वो 36.7, ठीक है। साक्षी मैं फॉर्मूला मेथड क्लास में समझाऊंगा, क्लास में फॉर्मूला दूंगा, ठीक है, वो सब पढ़ने के लिए आज मैं यहाँ नहीं आया हूँ, ठीक है। देर आर ऑलवेज कंडीशन पर्शिया, देर कैन बी मोर रेंज, देन यू हैव टू यूज द ऑप्शंस अकॉर्डिंगली, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग यू एवरी टाइम दिस वर्क, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दिस वर्क, देयर विल बी एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चंस इन द एग्जाम जहां आप ऐसे कर सकते हो। एवरीबॉडी इफ यू अंडरस्टूड दिस, टाइप वाई इन द चैट बॉक्स राइट नाउ, ठीक है, कूल, थैंक यू, गो फॉर दिस क्वेश्चन राइट नाउ, द टाइम स्टार्ट्स नाउ। Parshia, I can give you the PPT later on, I'll give you my number, just take my PPT. Very good, Pujan. No Kalpita, no Manvin, आपकी आंसर जो भी है रख के देखो ना, सेटिस्फाई होना है। गुड निहारी, नो नुपुर, नो हर्ष, नो कल्पेश, नो दीप,
एंड पे मैं मेरा नंबर दूंगा, किसी को भी कोई भी चीज डिस्कस करना है तो डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, यू आर लेफ्ट अप विद 1 more minute, ट्राई दिस। टाइम अप गाइस, एवरीबॉडी आई नीड योर अटेंशन, एवरीबॉडी आई नीड योर अटेंशन, योर टाइम इज अप। ठीक है, इफ यू आर यूजिंग द पेन जस्ट पुट द पेन ऑन द पेपर एंड जस्ट गिव कंप्लीट अटेंशन हियर। ठीक है, यहाँ इतना बड़ा इक्वेशन दिया है, इतना बड़ा इक्वेशन को देख के किसी को भी डर आता है एग्जाम में, कोई भी डरता है। ठीक है, डर के छोड़ देता है। ठीक है, एंड एग्जाम में ऐसे वाले क्वेश्चंस को पकड़ने के लिए भी बहुत सोचते लोग। आपको एक चीज ध्यान में रखना है यहाँ। ठीक है, मतलब एक बार कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के पहले आपको, सॉरी, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने के पहले क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ क्या दिया हुआ है, x² + x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 इंटू x+3 = 0। x एक रियल नंबर है, देन वन वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। मुझे ऐसा एक वैल्यू चाहिए x का, ऐसा एक वैल्यू चाहिए x का जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ऐसा एक वैल्यू चाहिए x का जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सो क्या होगा वो, मैं देखता हूँ ऑप्शंस में कोई इजी ऑप्शन हो तो सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। ठीक है, आइडियली इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और पॉलिनोमियल्स का सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे, बट लेकिन मैं ऑप्शंस को देख के थोड़ा करने के लिए सोच रहा हूँ। क्या है यहाँ, D0 है, सबसे इजीएस्ट है, हमेशा उससे स्टार्ट करना पड़ेगा। राइट, मैं देखता हूँ x में 0 रखने से LHS = RHS होगा या नहीं। 0 रखूंगा, यहाँ क्या आएगा, x² is 0, 0+1 इंटू 0+2 इंटू 0+3 इंटू 0+6, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6, दैट विल बिकम माई LHS, which is 2 3 जा 6, 6 6 जा 36। and what is my RHS, मेरा RHS 0 है, राइट हैंड साइड। is 36 and 0 equal, is LHS equal to RHS? No, therefore D is definitely not an answer। 0 रखने से LHS और RHS दोनों सेम नहीं हुआ भाई, तो मैंने छोड़ दिया उसको। अब देखता हूं इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को अच्छे से देखता हूं मैं। इफ यू क्लियरली ऑब्जर्व, x² जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। x² जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ 1 जो है, 2 जो है, 3 जो है, 6 जो है, वो सारे पॉजिटिव ही है। राइट, मतलब एक पॉजिटिव का वैल्यू एक पॉजिटिव का वैल्यू ऐड होने से कभी 0 तो नहीं बन सकता। पॉजिटिव का वैल्यू 0.1, पॉजिटिव का वैल्यू 0.3 ऐड होने से कभी 0 नहीं बनता। मतलब मेरा x जो भी है, मेरा x जो भी है, ठीक है, वो पॉजिटिव नहीं हो सकता। मेरा x जो भी है वो पॉजिटिव नहीं हो सकता। क्यों पॉजिटिव नहीं हो सकता, मैं सबसे छोटा वैल्यू 0.1 भी लू, ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, मतलब 0 से ज्यादा जाएगा। ये तो x² है, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये भी 0 के ऊपर जाएगा। मतलब डेफिनेटली x पॉजिटिव हो गया तो मेरा आंसर हमेशा 0 के ऊपर आएगा, कभी भी 0 को इक्वल नहीं हो सकता। इससे मुझे एक चीज अच्छे से समझना है, मेरा आंसर मेरा आंसर x जो है वो हमेशा नेगेटिव ही होना है, तभी मुझे ये पॉसिबल है। ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है बस। ठीक है, मतलब बिकॉज x पॉजिटिव हो गया है तो मैं पूरा LHS 0 के ऊपर जाएगा, तो मेरा आंसर कभी इक्वल नहीं होगा। मैं देखता हूं ऐसा कौन सा ऑप्शन है
जो नेगेटिव है। मुझे पता है √1 इज इक्वल टू 1, √4 इज इक्वल टू 2, एंड आई हैव √3 इन बीच में, विच मस्ट बी समवेयर अराउंड 1.6 और 1.5 और वॉट एवर, बट 1 और 2 के बीच में है √3। ये मुझे पता है तो मैं यूज करूंगा। 3 प्लस 1.6 कितना, एक्चुअली 1.732 होता है √3 का वैल्यू। 3 प्लस 1.7 क्या है, 4.7 है। मतलब ये गलत है, क्योंकि वो पॉजिटिव है, मेरा आंसर नेगेटिव ही होना है। पॉजिटिव हो गया तो आप LHS में जीरो नहीं आएगा। और 3 माइनस √3 मतलब 3 माइनस 1.7, ये क्या है, 1.3। ये भी पॉजिटिव आया, मतलब ये भी नहीं होगा आंसर। देखो √3 माइनस 3 मतलब 1.7 माइनस 3 माइनस 1.3, ये नेगेटिव हो गया। मतलब मेरे पास नेगेटिव आ गया है। मतलब जब नेगेटिव आ गया है तब मेरे पास ऑप्शन है इन वैल्यूज को नेगेटिव बनाने के लिए, नहीं तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा। सो मेरा आंसर होगा सी। ठीक है, मैं कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया यहाँ, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव ही देखा। सो वो होता है, वो कॉमन सेंस है। ठीक है, जब भी बड़ा बड़ा क्वेश्चंस होता है, आप थोड़ा पेशेंस से देख के समझना है कि मैं इसको कॉमन सेंस से कैसे करूँ। ठीक है, एवरीबडी इफ यू अंडरस्टूड दिस टाइप इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड गाइस, whoever did by same thinking. When I am asking you to type y, you can simply type y. That means to say you understood yes. ठीक है, लास्ट ईयर मैंने कुछ नहीं किया। मेरे ऑप्शंस में जो भी है वो नेगेटिव होना चाहिए। वो नेगेटिव ये की है, वो नेगेटिव क्यों आना चाहिए, x पॉजिटिव हो गए तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव 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 कितनी भी करो, जीरो कभी नहीं होगा। स्मृति, जब भी ये पॉजिटिव होगा मतलब 0.1 छोटा वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू 0.1 भी लो, सो ये 1.1 2.1 3.1 6.1 होगा, जिसका वैल्यू 36 से ऊपर जाएगा। सो ये पॉजिटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव हो गया तो जीरो कभी हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ ABCD, ये जीरो कब होगा, इफ अट ऑल ऐसे AB+ ABCD सारे पॉजिटिव हो तो ये जीरो होगा ही नहीं। इसमें कम से कम कोई ना कोई एक माइनस होना चाहिए, ताकि 10 - 10 जीरो बनेगा। ठीक है, आपको वो सोचना आना चाहिए थोड़ा। ठीक है, बट वी नेगेटिव में फिर आंसर क्यों नहीं हुआ सर, सबके बीच में पॉजिटिव की जगह -18 हो जाता है, कैसे करें। नो आयुषी, ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि 1 - 1.7 होगा, ये बाकी पॉजिटिव होगा। इसकी नेगेटिव होने की वजह से इन सारे का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, तब x² पॉजिटिव होगा, ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, तब जीरो आ जाएगा आंसर। ठीक है, सो आपको वो सोचना है पॉजिटिव नेगेटिव के जैसा, ये नहीं हो तो आपको रूट्स में एक वे होता है, एक तरीका होता है रूट्स में। ठीक है, जब भी A+√B रूट हो तो, एक रूट हो तो A- √B डेफिनेटली रूट होना चाहिए। दैट्स ए रूल। ठीक है, वो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाता हूँ उसमें होता है। ये भी पता हो तो भी कर सकते हो। एक तो मैंने D को एलिमिनेट कर दिया। हम्म, ही इज आस्किंग इसमें एक वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जाम्पल ये सेटिस्फाई कर रहा हो तो अकॉर्डिंग टू द रूल प्रॉपर्टी ये भी सेटिस्फाई करना है, मतलब ये रूट हो तो ये भी रूट होना है। मैं सिर्फ एक ही ऑप्शन को तो यूज नहीं कर सकता, टिक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक रूट हो गया तो दूसरा भी रूट होगा। बिकॉज जब भी एक रूट 3 + √5 हो तो 3 - √5 दूसरा रूट होगा ही, फॉर एन एक्सप्रेशन। सो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होना है। क्योंकि एक ऑप्शन सही होगा तो दूसरा भी सही होगा, तो मैं आई एम लेफ्ट अप विथ ओनली दिस, without even doing anything thinking also I could have done this question. This is another approach, but इसके लिए आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना है that एक रूट A+B रूट भी हो तो दूसरा रूट A- √B होगा ही। ठीक है, cool. I hope you are enjoying the session. Let's go for next question and try to solve in the best way we can. Yep, your time starts now.
या त्रयंबक। नो हर्षिता। नो निशी। नो सैमसंग। नो दीर्घ। नो पार्थ। नो अमित। नो मलिका। So guys, I'll discuss in just 40 seconds. No Suraj. No Gatan. Let's check Isha. Last 20 seconds. Okay, everybody, look here. ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कॉन्सेप्चुअली भी कर सकते हैं या तो कॉमन सेंस के थ्रू भी कर सकते हैं। एंड बाय द वे, बिफोर आई स्टार्ट दिस क्वेश्चन, लेट मी टेल यू, दिस इज ए कैट 2018 का क्वेश्चन। ठीक है, कब का क्वेश्चन है? कैट 2018 का क्वेश्चन है। सी, इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन जब भी आता है उसको छोड़ना मत। नॉर्मल कॉन्सेप्ट में ट्राई करने के लिए मत करो, सीधा ऑप्शंस पे जाओ। जब भी ऑप्शंस है, वो क्या बोल रहा है? उनको ये नेगेटिव होना है, राइट? उनको ये नेगेटिव होना है। एंड हमारे पास ऑप्शंस भी है। मैं क्या करता हूँ, ऑप्शंस की वैल्यूज में एक वैल्यू लेके उसमें पुट करता हूँ, देखता हूँ कहाँ कहाँ सेटिस्फाई होगा। सबसे इजीएस्ट वे है, सबसे इजीएस्ट वैल्यू क्या होगा सब्स्टिट्यूट करने के लिए? सबसे इजीएस्ट वैल्यू क्या होगा सब्स्टिट्यूट करने के लिए? सबसे इजीएस्ट वैल्यू इज 0, राइट? मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू 0 रख दूंगा। x इक्वल टू 0 कौन से ऑप्शन में? -2 to 3, यहाँ x 0 है। अगेन -2 to 3, यहाँ x 0 है। 3 to 9 के बीच में 0 नहीं है। मैं करता हूँ यश, -5 to -2 के बीच में 0 नहीं है। लेस देन -5 में 0 नहीं है। therefore 0 is there in both the options 2 and option 4। मैं x इक्वल टू 0 रख दिया तो ये 0 + 0 -15, -15 न्यूमरेटर होगा। 0 - 0 -18 डिनोमिनेटर होगा। सो -15 में -18, माइनस माइनस कैंसिल, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। मतलब व्हेन x इक्वल टू 0, मेरा आंसर नेगेटिव नहीं आया, मेरा आंसर पॉजिटिव आया। यहाँ 18 भी होना है, यहाँ 18 भी होना है। ठीक है, मेरा आंसर पॉजिटिव आया है। देयरफॉर ऑप्शन 2 ऑप्शन 4 दोनों एलिमिनेटेड है, x इक्वल टू 0 लिया तो। अब मेरे पास ये दोनों है। अब मेरे पास ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 बचा है, क्योंकि जब आप x इक्वल टू 0 लिया, x इक्वल टू 0 लिया, ये यहाँ मुझे आंसर पॉजिटिव आया, नेगेटिव नहीं आया। नेगेटिव चाहिए मुझे तो। ठीक है, अब इन दोनों में 3 to 9, 3 to 9 दोनों में है, मतलब वो सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा उसको, इसलिए वो तो दोनों है। अभी इन दोनों में एक ही ऑप्शन है। अभी -5x < यहाँ x < मतलब या तो -5 से कम वैल्यू एक लेके चेक करूंगा, वो सेटिस्फाई हो रहा हो तो ये आंसर होगा। ना तो -2 और -5 के बीच में एक वैल्यू लूंगा, वो सेटिस्फाई आ रहा हो तो ऑप्शन 1 हो। सो मैं -5 से कम होने वाले वैल्यू नहीं लूंगा, क्योंकि -6 -7 वो सब आता है, मुझे कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है। मैं -2 और -5 के बीच में एक वैल्यू लूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन कम होता है। -3 -4 ही तो है, तो उन दोनों में भी स्मॉल वाला -3। तो -3 को किया तो मुझे क्या आता है, ये 9 बन जाएगा। ये -2 इंटू -3, ऊपर -12, नीचे 12। देयरफॉर क्या आया मेरा आंसर? 12 12 गया तो -1, नेगेटिव आया।
मतलब -3 मेरा आंसर में होना है, क्योंकि मुझे नेगेटिव चाहिए, राइट। वो लेस देन -5 में -3 नहीं आएगा, -2 और -5 के बीच में मेरा -3 आएगा। सो मेरा आंसर होगा 1, 3 एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, दो वैल्यूज, एक x = 0, एक x = -3 रखने से आपको फटाक से आंसर मिल जाता है, आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को स्प्लिट करके उसके बाद सॉल्यूशन बना के देखने का जरूरत नहीं है। दैट्स द एक्चुअल मेथड। ठीक है, which I will anyhow teach you in the classes, but the point is to learn these kind of strategies and approaches. Everybody, if you understood this, type Y in the chat box. ठीक है, आई थिंक वी आर डन विथ 5 क्वेश्चंस, आई एम लेफ्ट विथ 5 more questions. ठीक है, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन गाइस। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऑल ऑफ यू ट्राई टू solve this. Your time starts now. नो भव्या, नो उज्जवल, नो आयुषी, नो पार्थ, कूल त्रयंबक, नो मानसी। थोड़ा अच्छे से सोच के देना आंसर। नो देव, नो दीर्घ, नो स्नेहा, नो देव, कूल यश, कूल कल्पिता, नो तमन्ना, नो वैष्णवी, नो सुजल, नो रिदम। ओके गाइस, टाइम इज अप। ठीक है, आई नीड योर अटेंशन, जस्ट कीप द पेन ऑन द पेपर। देखो, ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, it was this came in cat also. I don't remember exact date, I think it was cat 2008 or 2009। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है उसको एक्चुअली या नॉर्मल मेथड में करना है तो आपको बहुत बहुत टाइम लगेगा। नॉर्मल मेथड में आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको x⁴ हो जाएगा पहचानने के लिए आंसर, बहुत टाइम लगेगा। पर लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक बेसिक थिंग क्या चाहिए होता है, आपको पता होना है √4 का वैल्यू कितना है। सबको पता ही है, √4 का वैल्यू 2 है, राइट। √9 का वैल्यू 3 है, √16 का वैल्यू 4 है, √1 का वैल्यू 1 है। 1, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ये तो सबको पता है। कोई भी बंदा को इतना पता हो तो ये क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि थोड़ा अच्छे से देख लो, थोड़ा अच्छे से देख लो क्वेश्चन में क्या है। √4 प्लस √4 माइनस समथिंग, √4 माइनस समथिंग, भले वो कुछ भी है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा, क्योंकि रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू हटा रहे हैं। 4 माइनस समथिंग है, 4 माइनस समथिंग है, और जो भी है √4 का वैल्यू कितना है, 2। √4 का वैल्यू कितना है,
टू, राइट। बट लेकिन 4 से भी कम है तो ये 2 से भी कम होगा। 4 से कुछ कम है मतलब 4 माइनस लेट मी से 1 और 1.2 और whatever, रूट 2.8 होगा, विच विल बी 2 से कम होगा। सो दिस विल बी समवेयर अराउंड 1.56 ऐसा, बिकॉज रूट 4 हो तो 2 होगा, बट लेकिन 4 से कम हो तो 2 से कम होगा। मैं 1.6 ले लेता हूँ, राइट। सो ये पूरा वैल्यू 1.6 है तो 4 प्लस 1.6 5.6, मतलब मैं रूट 5.6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए मुझे। मुझे इतना पता है रूट 1 तो 1 है, रूट 4 तो 2 है, रूट 9 3 है, मतलब रूट 5.6 इसके बीच में होता है। रूट 5.6 की वैल्यू 2 और 3 की बीच में होता है, राइट। 2 और 3 के बीच में होता है। सुष्मिता मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये जो दिया हुआ है उसमें उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस समथिंग, 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस समथिंग, राइट। लास्ट है एग्जैक्टली 5.6 नहीं आएगा, देख लो। 4 माइनस समथिंग है, 4 में से मैं कुछ हटा रहा हूँ, रूट 4 हो तो 2 होगा, बट लेकिन रूट 4 माइनस ऑफ समथिंग हो तो 2 से कम होगा ना। 4 से कम है वैल्यू, मतलब ये वाला वैल्यू है वो 2 से कम होगा। ये वाला वैल्यू है 2 से कम होगा, 2 से कम मतलब 1.8 1.9 1.6 कुछ भी हो सकता है, मतलब 4 प्लस 1.6 या 1.7 1.8 कुछ भी, रूट ऑफ 5.6 समथिंग, राइट। मैं जस्ट अप्रोक्सीमेशन से खेल रहा हूँ यहाँ, ठीक है। सो 5.6 ना, इट कैन बी 1.8 ऑल्सो 1.9 ऑल्सो, आई डोंट नो। बट मुझे इतना पता है ये 2 तो नहीं हो सकता, ये 2 तो नहीं हो सकता, मतलब ये 2 हो गए तो ये 6 होगा, ये 6 होगा, तो मतलब 6 से कम ही है आंसर। रूट के अंदर 6 तो 6 से कम ही होना है मेरा आंसर। इवन इफ आई टेक रूट 6 ऑल्सो और रूट 5 पॉइंट समथिंग ऑल्सो, वो 2 और 3 के बीच में होगा मेरा आंसर। सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करके मुझे इतना समझ में आ रहा है, मेरा आंसर रूट 4 और रूट 9 के बीच में होना है, मतलब 2 और 3 के बीच में होना है, राइट। सो बिकॉज 4 माइनस समथिंग कर रहा हूँ, 4 माइनस समथिंग किया तो ये 2 से 2 भी नहीं होगा, 2 से थोड़ा कम होगा, सो 6 से कम होगा मेरा आंसर। सो रूट 6 से कम होगा आंसर, रूट 6 से कम होगा मतलब 2 और 3 से बीच में होगा। सो 2 और 3 के बीच में हो तो 3 नहीं हो सकता, रूट 9 इटसेल्फ इज 3 तो रूट 13 भी नहीं हो सकता, राइट। रूट 13 का वैल्यू कितना है, रूट 13 का वैल्यू विल बी 3 पॉइंट समथिंग, बिकॉज रूट 9 इज 3, रूट 13 विल बी 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग माइनस 1 इज 3 पॉइंट समथिंग माइनस 1 इज 3 पॉइंट समथिंग माइनस 1 इज 2 पॉइंट समथिंग, बाई 2 विल बी 1 पॉइंट समथिंग, राइट। -1 किया तो 2.1 समथिंग आएगा, बाई 2 विल बी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। सो आपके आंसर 2 से ज्यादा होना है, बट लेकिन यहाँ 1 आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, देयरफॉर ये भी आंसर नहीं है, देयरफॉर ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। यहाँ स्नेहा रूट 13 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.6 होगा, बट लेकिन मैं 3 पॉइंट समथिंग लिया तो भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग बाई 2 विल बी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, राइट। मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, सिर्फ अप्रोक्सीमेशन किया। एवरीबडी इफ यू अंडरस्टूड दिस टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, ठीक है। सो दिस वाज ए कैट क्वेश्चन बाय द वे, ठीक है, वेयर आई एम यूजिंग कॉमन सेंस बट नॉट एनी फॉर्मूला, ठीक है। कल्पेश आंसर नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि रूट ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन गाइस, ये क्वेश्चन मजा आ जाएगा, ट्राई करो।
नो हरीश, नो पार्थ। प्रियांश, महक, आई थिंक यू आर टेलिंग द आंसर रिवर्स। नो वैष्णवी। फुल सृष्टि। नो विघ्नेश। नो अचल। कूल गाइस, योर टाइम अप। आई वुड रिक्वायर योर एस्टीम्ड अटेंशन हियर, एवरीबॉडी। ठीक है, अच्छे से देखो इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है। ABCD is a square of side 20 with E and F as the midpoint of AB and BC respectively। ठीक है, उनके पास एक स्क्वायर है, उसका नाम है ABCD, राइट। और वो क्या बोल रहा है, E and F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। AB का मिड पॉइंट E है, BC का मिड पॉइंट F है, रेस्पेक्टिवली। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD पूरा स्क्वायर टू द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AEFC। ओके, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम AEFC। जैसे कि अभी AC है, EF है, सो ये ट्रेपीजियम एरिया और स्क्वायर का एरिया चाहिए। और क्या दिया हुआ है मुझे, साइड 20 दिया हुआ है, तो ये 10 होगा, ये 10 होगा, ये 10 होगा, ये भी 10 होगा, बिकॉज ये मिड पॉइंट्स है। ठीक है, देर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। एरिया ऑफ द स्क्वायर तो हमको पता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD इज 20 स्क्वायर, वेरी सिंपल, विच इज 400। अब एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम कैसे पहचाने, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, वन थिंग इज टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम फॉर्मूला। एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम H/2 इंटू A प्लस भी, आपको EF भी पता करना पड़ेगा, AC भी पता करना पड़ेगा, उसके बाद उन दोनों के बीच में डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। एंड ये सारे पहचानने के बाद आपको फॉर्मूला में अप्लाई करना पड़ेगा, वो वाला बहुत लंबा मेथड हो। ठीक है, नहीं तो AEFC कैन बी रिटन एज AEFC कैन बी रिटन एज ट्रायंगल ABC में से, ट्रायंगल ABC में से ट्रायंगल EBF को हटा दूंगा, ट्रायंगल EBF को हटा दूंगा। इतना बड़ा ट्रायंगल में से ये छोटा ट्रायंगल हटा है, तो मुझे ट्रेपीजियम का एरिया आता है। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया तो मुझे पता है, ट्रायंगल का एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। यहाँ बेस 20 है, हाइट इतना है, लास्ट से अच्छे से देखो। ABC का एरिया क्या है, हाफ इंटू 20 इंटू 20। और EBF का एरिया क्या है, हाफ इंटू, पहले पूरा ट्राइंगल का एरिया पहचान लिया, उसके बाद छोटा ट्राइंगल का एरिया, हाफ इंटू 10 इंटू 10। 400/2 इज 200, 100/2 इज 50, मेरे पास 150 आ गए, राइट। अब मैं क्या पहचाने, ट्रेपेजियम का एरिया आ गए, स्क्वायर का एरिया आ गए। सो 400/150 किया तो 5 8 जा 5 3, द आंसर शुड बी 8/3। ये एक मेथड है, कितने लोगों ने किया है मेथड, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड। ठीक है, बट मैं बोलता हूं आपको ये भी नहीं करने का, आपको ये भी नहीं करने का, समझ, ये समझ में नहीं आया तो भी चलेगा। मैंने क्या किया, पूरा स्क्वायर का एरिया किया 420 स्क्वायर, उसके बाद ट्रेपेजियम का एरिया के लिए बड़ा ट्राइंगल में से छोटा ट्राइंगल को हटा दिया, उसके बाद किया मैंने। बट लेकिन आपको एक चीज देखना है, जब भी रेशियो मेथड दिया है, जब भी रेशियो मेथड दिया है, रेशियो पूछ रहा है एरियाज का, यू नीड टू मेक सिमिलर फिगर्स, यू नीड टू मेक सिमिलर फिगर्स। अच्छे से देखो मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, मैं, उन्होंने इन दोनों को जोड़ दिया, उसके बाद इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, मिड पॉइंट्स को जोड़ दिया। मैं क्या करता हूँ, जो भी मिड पॉइंट्स जो बचा हुआ है, उन दोनों को भी जोड़ दूंगा, जो भी मिड पॉइंट जो बचा हुआ है, उन दोनों को भी जोड़ दूंगा। ये दोनों को जोड़ दिया, ये दोनों को जोड़ दिया, वापस ये दोनों को भी जोड़ दूंगा,
एंड ये दोनों को भी जोड़ दूंगा। मतलब मैंने क्या किया, ऐसे मिड पॉइंट्स को जस्ट अटैच किया, ये दिया हुआ है, ये ऐड किया, ये ऐड किया, ये ऐड किया। अब क्या हुआ इस फिगर में, 8 इक्वल इक्वल एरियाज आया। दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस सारे 8 पार्ट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 विल बिकम द एरिया ऑफ द स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, सिर्फ ट्रेपीजियम का एरिया चाहिए, ये एफ सी। दिस इज ये, दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज सी, दिस आर द ओनली 3 थिंग्स चाहिए। तो 8/3। सो मेरा आंसर है 8/3। जो भी ज्योमेट्री का रेशियो का क्वेश्चन आता है, उसको उसको ऐसे कर सकते हो। एवरीबॉडी इफ यू अंडरस्टूड दिस टाइप, वाई इन द चैट बॉक्स। या, so what I have done here, I have only drawn extra lines। हमेशा में जब भी रेशियो का क्वेश्चन पूछते हैं, आई ट्राई टू मेक सिमिलर फिगर्स। ये ट्रेपीजियम दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, उसके बाद ये एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रा करना है, ये एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रा करना है, ये एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रा करना है। वो सिमिलर फिगर्स बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। सो सिमिलर फिगर्स बना के 1 1 1 1 1 1 सारे इक्वल हो गए। अभी 8 इक्वल पार्ट्स है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी 8, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम विल बी 1 + 1 + 1 AFC, which is 3। So that will be my answer, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू थिंक लैटरली। इट्स नॉट नेसेसरी दैट आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल भी पता होना है, जरूरत नहीं है, आप कर सकते थे, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये छोड़ देते हैं, या ये क्वेश्चन ट्राई करना फटाफट, आ जाएगा आप। मुझे पता चल रहा है कि इसके लिए 5 सेकंड भी बहुत ज्यादा है, या 1 मिनट भी बहुत ज्यादा है। ऋषि थोड़ा अच्छे से सोचो, अमित थोड़ा अच्छे से सोचो। ऋषभ हो जाएगा, बट लेकिन आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आई थिंक 2 मिनट्स बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन के लिए, मैं टाइम अप कर रहा हूँ। देखो, ये जो क्वेश्चन है, आपको ए बी सी का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है। एवरीबडी सी हियर, स्टॉप टाइपिंग द आंसर्स एंड कॉन्सेंट्रेट हियर। ए बी सी का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, राइट। उसमें 1 × 1 × 1 मैं ले सकता था, 1 आना है तो। और ए बी सी का कोई कंडीशन नहीं दिया, मतलब ये ए बी सी कुछ भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है। मैं इसको सिंप्लीफाई करने के अलावा सिंपली ए की जगह 1, बी की जगह 1, सी की जगह 1 रखता हूं भाई। ये क्या बन जाएगा, 3/1 + 1 + 1/1, विच विल बी 1। 3/1 + 1 + 1/1, विच विल बी 1 अगेन। ये 3/1 + 1 + 1/1, राइट। 3/3 विल बी 1, 3/3 विल बी 1, 3/3 विल बी 1, 1 + 1 + 1 3 होगा, ठीक है। आपको इससे ज्यादा इजियर क्वेश्चन क्या हो सकता है। अलजेब्रा में हमेशा आपको सोचना है कि जब आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है एंड वेरिएबल्स का कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, ऐसे वैल्यूज लो ना जो सेटिस्फाई करता है।
ठीक है एवरीबडी, इफ यू अंडरस्टूड दिस टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। ठीक है, आप ए बी सी इज इक्वल टू 1 दिया हुआ तो ये 1 लेके ये 2 लेके सी 1/2 भी ले सकते हो, तब भी आपका आंसर आएगा, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इजीएस्ट वैल्यू क्या है, 1 × 1 × 1, फटाक हो गया। वही इधर होल नंबर नहीं हो तो भी सेटिस्फाई होगा। आप होल नंबर के अलावा बाकी नंबर भी ले लो, हो जाएगा, कोई भी नंबर ले लो हो जाएगा, या इट कैन टेक एनी रियल नंबर। उन्होंने बोला नहीं, यहाँ प्रेरक विज्ञान अज्यूम ऐसे ही, उन्होंने कोई कंडीशन नहीं बोला है, ये ही होना है वही होना है। जो उन्होंने बोला नहीं, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, जब तक ये बी सी का मल्टीप्लीकेशन 1 है, वो सेटिस्फाई होना है बस। तो ए बी सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जब ये पता होता है, इस क्वेश्चन करने का 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लेना है आपको। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू गिव द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी हाउ यू आर गोना प्रोसीड विद दैट। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ट्राई दिस क्वेश्चन। श्योर लास्या। बस देखना पड़ेगा। लेट्स वेट फॉर 50 more seconds guys, I'll discuss. Cool guys, your time up. See here everybody, इतना प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, देर आर n टर्म्स इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कितने टर्म्स है, n टर्म्स इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। एंड वो क्या बोल रहा है, S3n इज इक्वल टू 2 × S2n। तब S5n एंड S4n क्या होता है। लेकिन यहाँ कहीं पे भी ये नहीं बोला है n क्या हो सकता है, मैं n को क्या लू। सबसे इजीएस्ट नंबर क्या होता है n को देने का, मैं n को वैल्यू 1 मानता हूं, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं n कुछ भी हो सकता है। n 1 ले लिया मैंने, राइट। अब क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स। दैट्स व्हाट इज द मीनिंग आई एम गेटिंग हियर। सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स इक्वल टू सम ऑफ द 2 टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स। मतलब हम एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा लेना है जिसमें समेशन ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स इज ट्वाइस ऑफ द समेशन ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स। ठीक है, व्हाट इज द इजीएस्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यू कैन थिंक ऑफ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होना। हम पहले पहले बचपन में नंबर्स जब पढ़ना चालू करते हैं, वी स्टार्ट विथ 1 2 3। इससे भी इजी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे जाते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बिकॉज +1 +1 +1 हो रहा है। अब वो क्या पूछ रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इज 6, सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स इज 3, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स। मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1 2 3 4 5
is satisfying this condition of summation of first three terms is equal to 2 times of the first two terms. अब ये क्या पूछ रहा है? S5:S4 पूछ रहा है, मतलब सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज टू सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स. सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स का सम क्या है? 1+2+3+4+5, 15. सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स का क्या है? 1+2+3+4, 10. रेशियो इज 5 3 5 2. सो आंसर इज 3:2. Isn't that simple, everybody? Just to be able to think that I can take one arithmetic progression, right? Everybody, if you understood this, type Y in the chat box. त्रयंबक मैंने कुछ नहीं किया, n को 1 लिया, तब क्या आया? सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इक्वल टू 2 टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स. ऐसा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चाहिए जहां ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है. सो मैं सिर्फ नॉर्मल एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1 2 3 4 5 लिया, उसमें ये सेटिस्फाई हो रहा है. सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इज 6, सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स इज 3, sum of the first 3 terms is equal to 2 times the sum of the first 2 terms. 6 equal to 6. Therefore, I got. ठीक है. Now, this is how you will approach the questions. And I have one last question for you all. ठीक है. प्रोग्रेशंस वाले क्वेश्चंस जो भी है, जहां जहां वेरिएबल का वैल्यू कंडीशन नहीं दिया, आप वेरिएबल का वैल्यू लो. ठीक है. लास्ट का एक क्वेश्चन है जो मैं लास्ट ईयर कैट में मेरी स्लॉट में आया था, उस क्वेश्चन को लिया मैंने. उस क्वेश्चन को मैंने सिर्फ जुगाड़ से किया, कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं किया. ठीक है. वो कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ. ठीक है. जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस वन मोर क्वेश्चन इन द वे यू नो, बट आई विल टीच यू हाउ आई हैव डन इन द लास्ट ईयर. ट्राई टू सॉल्व दिस. यस पार्थ. नो आयुष. फूल्स नेहा. गुड एरन. नो हेत. नो पार्थ. नो मयांक. नो नुपुर. नो सौम्या. नो मान्या. फुल नुपुर. नो तनिषा. नो स्मृति. ओके गाइस, टाइम अप. आई रिक्वायर योर अटेंशन. ठीक है. अच्छे से देखो इस क्वेश्चन को. कॉन्फिडेंट आई मीन मैं इस क्वेश्चन को लास्ट ईयर कैट एग्जाम में 97% पीपल अटेम्प्ट भी नहीं किया. 97% ऑफ द पीपल इसको अटेम्प्ट भी नहीं किया. इट वाज द टफेस्ट क्वेश्चन इन द पेपर. बट मैं इस क्वेश्चन को क्वेश्चन पढ़ने के बाद 20 सेकंड में आंसर किया.
ऐसा नहीं है कि मुझे इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आता है, मैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्चुअली सॉल्व किया एग्जाम के बाद। एग्जाम के बाद कार में बैठ के इस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्चुअली मैंने सॉल्व किया। मुझे अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट लगा कम अप विद दैट। स्ट्राइक नहीं हो रहा था, ठीक है। बट लेकिन जब एग्जाम में मैंने किया, कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं किया। क्या किया देखो, सिर्फ पहला चीज आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ठीक है। इंस्क्राइब्ड का मीनिंग क्या होता है? इंस्क्राइब्ड का मीनिंग होता है अंदर रखा मैंने। सरकमस्क्राइब्ड का मीनिंग क्या होता है? बाहर रखा मैंने। अभी ये क्या बोल रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है विच इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल, ठीक है। एक सर्किल है, एक सर्किल है, सर्किल में मैंने एक क्वाड्रिलेटरल रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल रखा है। उस क्वाड्रिलेटरल में क्या है? ए बी इज टू सी डी 2:1 है, ठीक है। पहले ये भी है, पहले ये भी है, ये है, ये बी है, और सी डी भी है, वो 2:1 है। मतलब ये टू हो तो वो सी डी जो भी है ऑपोजिट वाला, वो 1 ही होना है, मतलब इसका आधा होना है, राइट। और क्या दिया उन्होंने? बीसी इज टू एडी, बीसी इज टू एडी 5:4, मतलब बीसी जो भी है, एडी जो भी है, वो 5:4 है। वो क्या है? 5:4 है। मतलब ये लेंथ के हिसाब से मैं डायग्राम ड्रा कर रहा हूं, देखो। मतलब बीसी ज्यादा होना है, एडी थोड़ा कम होना है। बीसी ज्यादा होना है, एडी थोड़ा कम होना है। तो बीसी ज्यादा किया, एसी थोड़ा कम किया, एसी थोड़ा कम किया, एंड ऑल्सो वीडी ज्यादा होना है, राइट। वीडी ज्यादा होना है तो मैं उसके हिसाब से ही कर दूंगा। वीडी ज्यादा होना है, एंड ऑल्सो ये दोनों कंडीशंस हमको सेटिस्फाई करना था। ए बी सी है, ए सी डी है। ए बी इज टू सी डी 2:1, ये टू हो तो वो क्या दिया हुआ है? ये जो है वो 1 है, राइट। ये जो है वो 1 है। ये 5 है, ये 4 है। ये 5 यूनिट्स होता है, ये 4 है। एक्चुअली रेशियो है 2x हो तो x है, 5y है तो 4y, बट चलेगा। इतना तो दिया हुआ है मुझे, इतना दिया हुआ। क्या पूछ रहा है? ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ई, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ई, देन ए इज टू ई सी पूछ रहा है। मैंने जैसे डायग्राम का लेंथ दिया हुआ है उस लेंथ के हिसाब से इसको ड्रॉ किया है, कुछ नहीं किया। अब देखो, वो पूछ रहा है ए इज टू ए सी, डेफिनेटली इस लेंथ के हिसाब से ये ही ज्यादा होना चाहिए ईसी से, बिकॉज ये छोटा है, 2:1 बोला है, तो ये छोटा है, ये बड़ा है। एंड ये भी कन्वर्ट जो रहा है, क्योंकि ये 5 हो तो ये 4 होना चाहिए। मतलब ये ही बड़ा होना चाहिए, ईसी कम होना चाहिए, राइट। मतलब ये ही ग्रेटर देन ईसी होना चाहिए। मतलब ये 5:8 नहीं हो सकता, क्योंकि ये ही इज लेस देन ईसी। सो 1:2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ए इज लेस देन ईसी। मैं ऑप्शन से खेल रहा हूं। नाउ आई एम ओनली लेफ्ट अप विथ 8:5 एंड 2:1। आई एम ओनली लेफ्ट अप विथ 8:5 एंड 2:1। आई वाज लाइक शिट यार, अभी दो ऑप्शंस आ गए, मैं क्या करूं? ऐसे सोच रहा था मैं एग्जाम में। तब मुझे एक चीज स्ट्राइक हुआ, इफ एट ऑल आई हैव दिस लाइन। साक्षी, मैं डायग्राम के हिसाब से जा रहा था, ए इज टू ए सी, ए ही बड़ा है, ईसी छोटा है, तो ये ही इस ग्रेटर देन ईसी होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, ऐसा एक लाइन है ऊपर, टू वाला, नीचे भी एक बड़ा लाइन है, टू वाला, ठीक है। इफ आई ड्रॉ लाइक दिस, ये दोनों ट्राइंगल सेम सेम हो जाता है, राइट, कॉन्ग्रुएंट होता है। बट बट यहाँ क्या हुआ? यहाँ क्या हुआ? ऐसा एक ट्राइंगल टू है, नीचे आधा ही है, पूरा नहीं है। ऐसा एक है, ऐसा एक है। मतलब ये टू हो तो यहाँ टू हो गया, ये टू हो तो ये भी टू हो जाता, ये टू हो तो ये भी टू हो जाता, यहाँ तो दोनों सेम हो तो, बट लेकिन ये सेम नहीं है। ये टू हो तो यहाँ 1 है। मतलब मतलब ये दोनों लाइंस इक्वल हो तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स होगा, बट लेकिन ये दोनों लाइंस यहाँ इक्वल नहीं है। ये 5 है, ये 4 है।
ये 5 ये 4 होने की वजह से ये 2/1 हो तो ये भी 2/1 हो ही नहीं सकता। एटलीस्ट इतना करने से आपको ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता। अभी मेरे पास यहाँ दो ऑप्शन है, इधर 2:1 और 8:5। ये 2:1 होने के लिए मतलब ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स होना पड़ेगा, वो तभी होता है जब ये दोनों इक्वल होता है। ये दोनों इक्वल नहीं है, ये बड़ा है ये छोटा है, जिसकी वजह से ये छोटा हो जाएगा ये और बड़ा हो जाएगा, ये छोटा कम हो जाएगा। सो 2:1 नहीं हो सकता, तो मेरा आंसर था 8:5। ठीक है, ये पहला तो कंडीशन एलिमिनेट करना इजी है, तीसरा कंडीशन एलिमिनेट करने के लिए थोड़ा और सोचना पड़ेगा। ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं हो तो ये 2:1 हो तो सॉरी ये 2:1 हो तो ये 2:1 नहीं हो सकता। जब ये भी 4 हो जाता तब ये 2:1 हो तो ये भी 2:1 हो जाता था, क्योंकि वो सिमिलरिटी के हिसाब से। या तो आप क्या कर सकते थे, एक पेपर को उस हिसाब से कट करके भी इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, सो यूजिंग योर कॉमन सेंस ओनली यू कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन फटाफट। नहीं तो आपको सिमिलर ट्रायंगल्स क्रिएट करके बहुत टाइम लेगा ये क्वेश्चन। एवरीबॉडी इफ यू अंडरस्टूड दिस टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। ठीक है, आई मीन देर आर मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग ए क्वेश्चन। त्रयंबक, मैं सिर्फ इतना बोल रहा था ये दोनों इक्वल हो तो तब ओनली ये 2:1 होगा, ये भी 2:1 होगा, ये भी 2:1 होगा। बट लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, ये 4 हो तो ये 5 है। देविश, वो मुझे यही ग्रेटर देन इसी क्यों आ रहा था, क्योंकि उन्होंने जो दिया है उसके हिसाब से मैंने डायग्राम ड्रा किया। ठीक है, उन्होंने जो दिया है उसके हिसाब से मैंने डायग्राम ड्रा किया। ये बी एंड बी सी, ये बी सी ये कम होना चाहिए, ये 2 हो तो ये 1 होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए, वो दिया है ना। तब मैं व्हेन आई जॉइन दिस टू, मुझे क्लियरली दिख रहा था ये बड़ा है ये छोटा है। दैट्स व्हाई ए इज ग्रेटर देन जीसी। स्मृति, ये अप्रोच तभी आता है व्हेन यू ड्रॉ द डायग्राम एंड लुक एट द डायग्राम एंड ऑब्जर्व इट फॉर ए 10-15 सेकेंड्स। या 2:1 कैसे एलिमिनेट किया देखो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे दो लाइन्स हैं। हम्म, मैं बोलता हूँ ये 6 यूनिट्स हो तो ये भी 6 यूनिट्स है, तो ये दोनों पैरेलल होगा। तब ये 6 है ये 3 है, मतलब ये 2:1 है, तब इन दोनों का रेशियो भी सेम होगा, इन दोनों का रेशियो भी सेम होगा, बिकॉज ये दोनों इक्वल है। अब क्या हो गया, ये दोनों इक्वल नहीं है, ऐसा एक है, एक बड़ा है, एक ऐसा है। ये 6 3 हो तो ये मैं 8 ले लेता हूँ, ये बड़ा हो गया। तब ये दोनों इन दोनों का रेशियो जो भी होता है वही दोनों रेशियो यहाँ इक्वल नहीं होगा। ये 6:3 है तो ये 6:3 नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा आपको डायग्राम समझने से आ जाता है। ठीक है, आपको थोड़ा ये लैटरली अप्रोच करना पड़ेगा क्वेश्चन। ये कॉमन सेंस है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। ऑल द क्वेश्चंस यू कैन ट्राई त्रयंबक। आई वोंट से दैट हर एक क्वेश्चन में ज्योमेट्री में आपको ऐसा अप्रोचेस लगेगा, बट लेकिन देयर विल बी मेनी क्वेश्चन जहां आपको ऐसा वाले अप्रोचेस लग सकता है। मतलब हर कैट एग्जाम में दो क्वेश्चंस होगा जिसमें आपको सीधा जुगाड़ मेथड से आ जाएगा आंसर, मतलब मोस्टली 20-25 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स में आ जाएगा। एंड लास्ट ईयर इवन इफ यू गेट टू क्वेश्चंस राइट एंड 6 मार्क्स इज इक्वल इन टू 65 to 70%। 6 मार्क्स लास्ट ईयर वॉज 70%, मतलब काफी बेबी आईएम्स का कट ऑफ क्लियर हो जाता है सिर्फ दो क्वेश्चंस करने से। सी मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको समझाने के, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू नीड टू बी गुड एट फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ के उसका अच्छे से डायग्राम बना के थोड़ा कॉमन सेंस लगाए तो भी आपका आंसर हो जाता है। आपको सिर्फ देखना है वो कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, सिर्फ ये एक क्वेश्चन आई मीन एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आई हैव टेकन एंड आई एम डूइंग, एंड ऐसे वाले सेशंस मैं काफी करने वाला हूँ फ्यूचर में। ठीक है, सो यू पीपल शुड इंश्योर
you spend all your time in enhancing your concepts, and also कोई भी क्वेश्चन आपको conceptually नहीं हो रहा तो आप जुगाड़ मेथड से कैसे कर सकते हो सोचना पड़ेगा, ठीक है. Not all the questions can be done, but 20 to 30% of the questions can be solved in many other ways, ठीक है. And I have one important announcement for you. uh, Coming Monday, ठीक है, which is on June 3rd. Okay, we are doing felicitation to all the achievers who achieved IIM calls in the last year from eCoaching. Okay, and that felicitation will be done in Ahmedabad Management Association Hall at 6 p.m. Okay, उन सबको हम फेलिसिटेट करने वाले हैं और उन सबके साथ बात भी करवाएंगे, राइट. इन केस आपको मिलना है उन टॉपर्स को जो भी आईआईएम्स को कन्वर्ट किया, ठीक है, आप आके उनके साथ मिलके क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, उनकी स्ट्रैटेजीज पूछ सकते हो, राइट, ठीक है. Ensure it will not be there virtually, but we'll try to record it. But whoever so is in Ahmedabad can come to that session and then meet the people who converted IIMs and then talk with them and interact with them. ठीक है. I hope you enjoyed the session. ठीक है. On that note, I am ending my session. Make sure you start loving maths. ठीक है. And I'll help you loving the maths. ठीक है. Thank you guys. Cool. ठीक है. मेरा नंबर भेज रहा हूँ मैं सबको. In case anybody wants to ask me anything, they can ask me in WhatsApp. Sure, you can message me in that framework. Take care, guys. Bye bye.